First of all, thanks to your personality development club that actually came to me and requested me to present or deliver this talk. And this talk, as you all know, is titled "The Art of Studying Effectively." Right? And as Chetan has already introduced me, so I am Devesh Singh, a research scholar at Interdisciplinary Department of Education Technology at IIT Bombay. So in today's talk, we will be talking about various time management techniques and various techniques that you can employ for studying effectively. So before I start, all that in this session, I want this session to be very interactive, and for that, I want input from all the participants. So since there are 87 participants, it won't be possible to take input from each one of you. So let's say 5 or 10 of you can say something why you are interested to join this talk, and I'll write down your responses, and then maybe depending upon that response, we can try to uh, decide the course of this talk. So just put on your mics and say why you were interested in joining this talk. It is not only about the hello, sir. I'm Ameya. Yeah. Okay, I wanted to join this class or session because of studying and learning is the process of lifetime, and it is not only about the college life. If we can Exactly. optimize that process, eventually we can achieve the great success in our life. So I wanted to learn this skill. So I have joined this workshop. Great. So you are talking about lifelong learning. Wow. Yes. Your name was? Ameya. Ameya Hattarke. Okay. Ameya. Thank you. Others? "89 people are there and nobody is willing to speak." Hello, sir. My name is Ajit Tiwari. Hello, Mr. Hello, Tiwari. I am audible. Yeah. You are audible. Yes, sir. I had joined this session to first of all because after seeing that you are graduated from IIT, and I had very respect for IIT's institute, that these institutes produces matlab sharp minds of India. Okay. So that was the first reason, and second reason why is I believe that if if there is a certain work, and if you do it in a right manner, it can done very easily. You are guiding us for study. If we do that work in right manner, so we can do it very easily. But in lack of the guidance, we try many things, and also those things which don't work, and waste our times. So in order to make our efficiency, because in according to me, as I had means I think engineering is not means easy. It will be very hectic, means very hectic jobs, and time management is very required. So that's why I had joined it. Okay. So you said two things. First is you were really happy to see my profile, which I'm not going to write. Second thing, you think that there is a correct way of doing certain things, and you want to learn that. Yes, sir. Yes, sir. I'm more interested in that. Do proper method to approach any problem or any work. Okay. So that can Okay. be done easily, very easily. Others? Hello, sir. Hello. Myself Aditya. Hi, Aditya. Sir, I thought getting tips for increasing my grades won't hurt me, so that's why I joined the session. Okay, you know, tips and tricks. Okay. Hello, sir. Hello. Myself Aditya. You are also Aditya.
Yes, sir. Okay, so many Aditya. Yes, Aditya. I think I should get something new knowledge. That's why I joined that webinar. Okay, you want something new. Okay. So I joined the session because I wanted to learn how to make something something which is not interesting to make it interesting. I wanted to learn that, that art, so that I can keep myself involved into things. Things interesting. Okay. Sir, Hmm. myself Gopal Ghule, and I want to learn on this session is uh, I overcome my previous year study planning. My previous year study planning Hmm. to मतलब गोपाल उसको या मैं या या उसको तो आपको अगर yes हिंदी में बोलना है तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। आई थिंक सबको हिंदी yes तो आती है, तो या हिंदी इज फाइन। मैं इस सेशन से यही सीखना चाहता हूँ कि मैं मेरा स्टडी प्लानिंग में कैसे इम्प्रूव करूँ। ओके, improve your study plan. What else? Myself, Nishad Kasud. Yes, sir. Nisha. Am I audible? Yeah. Your name is Nishad Kasud. Nishad. Nishan. Okay, Nishan. Yes, yes. I want to learn about how to manage the time with this huge syllabus of engineering. Okay. Manage time. Okay. So I think that's all. So what happens is, before I begin, I'll tell you. So what in IITs, there are huge number of courses running, and there are certain electives. So elective courses are courses that students need to choose for themselves, right? And because there are hundreds of courses running, and students want to choose the courses, what students do is they try to visit the classes for say first week or something, and then they decide. So in our department, we have a professor, Professor Sahana Murthy. She is from MIT. She did her master's here from IIT Bombay, and I think postdoc from MIT. So what her first class is like this. She will first ask the participants to tell, to list down their expectations from the course, what they want from the course, and then she, in the next slide, she will tell what she will be teaching in the course, so that your expectations from the instructor and what instructor is expecting from the course actually matches. Sorry for that. So that was the main motive why I actually asked you to register your responses here. So before we go further, let me clarify a few things. First is about lifelong learning. So this was very important point. Actually, you are actually entering into a new phase of life. कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से बहुत ज्यादा अलग होती है, ठीक है? और कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजें जो आप सीखेंगे will actually help you in lifelong learning. So lifelong learning के बारे में I don't know if I'll be covering something from in this presentation, but maybe later on or something I will share some resources. And this lifelong learning का concept is very important, right? So maybe I think in some questions and all we may cover it. If not, I'll talk to your Nilesh or someone from Personality Development Club, and we will see how we can help you in this lifelong learning. Second way is this things like correct way of learning, tips and tricks and all that. This is one thing that I want to say. So usually you might have heard this from your parents कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, और things about कि पढ़ने का क्या सही टाइम होता है, पढ़ने का क्या सही तरीका होता है and all. But जितना मुझे पता है और जितना रिसर्च कहती है, to be honest, there is no right time to study or right way to study. हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट? हम सब बिल्कुल अलग हैं और हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग है.
एंड आई हैव सीन पीपल जो रात को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो राइट वे ऑफ कोई सही तरीका भी नहीं होता पढ़ने का, और कोई सही टाइम भी नहीं होता पढ़ने का। तो और तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। So it's not that some speaker will come and tell you the correct way of learning and correct time to learn and you will follow that and you will succeed. It's actually through your trial and error, खुद से प्रैक्टिस करके, खुद से सीख के कि रात को एक दिन पढ़ा, मे बी अगर इफेक्टिव हुआ, अगले दिन कुछ दिन बाद मॉर्निंग वाला शेड्यूल वो करा, तो देन ट्राई टू कंपेयर इट, राइट, कि तुम्हें कौन सा सूट कर रहा है. So your style of learning may be different, and even in रोहिणी पात्रीकर कॉलेजमध्ये. Okay, right. And second thing is, so this is second point also. So I cannot give you some tips and tricks that will actually make miracles in your life, right? Next thing is about something new. So I will be sharing a few things in the slides. I don't know if they are they will be new to you or not, but I will try my best to definitely introduce something new to you. The next thing is how to make things interesting. Okay. So this is very, very difficult question, and we'll see how you can handle this, right? Then improve your study plan. This I will talk about time management and study plan. I will talk about a little bit in the what you call in my presentation. So let's go. Okay. So the first thing we will be talking in this talk is goal clarification. Also, I will be actually finishing very soon because I don't want to really bore you with too many things and all. It will be short presentations. If you will need some some more material and all, we will see if we can arrange some other session, because too much of lecturing at one time is not that effective. So in this presentation, we will be talking about three things. First is goal clarification, second is time management, and then third is I'll be talking about some skills that might help you in effectively learning things. So the first thing is clarify goals. I think just before I began my presentation, there was already some video running on the system. I think Nilesh was playing that, and there also he was telling about this. So the first thing, before you start planning your study is you need to answer this question: why to study, or why to study a particular topic. That is very important question. And the reason why this question is important, why do you think this question is important? Can you tell me? Let's make this more interactive. क्यों जरूरी है ये पता करना कि पढ़ना क्यों जरूरी है? मूवीज वगैरह का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 3 इडियट्स का और वो सब का, कि मतलब ये पता करना क्यों जरूरी है, अपने गोल्स के बारे में पता करना क्यों जरूरी है. Sir, it motivates us. Okay, motivates. Very good. Motivation. Anything else? सर वो डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाता है. Distraction से बचाता है. Very good. जाती है तो डिस्ट्रैक्शन से बचाता है. Anything else? Improve ourselves. Improve ourselves. Okay. How do we improve ourselves? How does this question improve ourselves? Improve कैसे करता है? हेलो, आप में से किसी ने कहा ना इम्प्रूव करते हैं ourselves. इस क्वेश्चन से हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? Gaining a knowledge. Okay. और ठीक है. तो पढ़ाई कैसे करनी है, कब करनी है, इससे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पढ़ाई क्यों करनी है. एक्चुअली पढ़ाई क्यों करनी है से बढ़िया ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं. और गोल्स दो तरीके के होते हैं. देयर आर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर कमिंग टू योर इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका एक शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता था कि आपको जेई क्रैक करना है, राइट. जेई क्रैक करना एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया.
तो ये जो छोटे गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स वो आपको एक तो मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मतलब आपने गोल टारगेट सेट कर लिया तो यू नो कि अब यहाँ जाना है, तो इसलिए उस गोल के थ्रू आपको मोटिवेशन आएगा, राइट। और दूसरा क्या होता है कि ये डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको यही जाना है, तो आपको ये भी पता है कि आपको वहां नहीं जाना, राइट। जैसे कल आपका अगर गोल है कि कल के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो जैसे ही आपने गोल सेट करा आपको ये भी पता लग गया कि आपको क्या क्या नहीं करना, आज आपको खेलने नहीं जाना, शायद फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, तो इससे आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचते हैं, राइट। और ये हमारे गोल्स, हम काम सेम कर सकते हैं बट हमारे गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मूवीज के बारे में बोला, तो 3 इडियट्स में वी सी दोस 3 फ्रेंड्स, जिसमें से फुनसुक वांगडू को इंजीनियरिंग करना था क्योंकि ही वांटेड टू लर्न, दूसरे एक फ्रेंड को इंजीनियरिंग इसलिए करना था बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मनी, राइट। करना दोनों को सेम काम था। तो अगर हम अपने गोल्स प्रॉपर्ली सेट करें, properly set our goals, that will actually motivate us, that will also prevent us from distractions, and it will actually also set our path कि हमें किस रास्ते से जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सब डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए we have to focus on this question why study, right। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों ने इसमें बोला था कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एक बार हमने गोल सेट कर लिया तो उस गोल को अचीव करने के लिए इट इज वेरी क्रूशियल दैट इट इफेक्टिवली मैनेज आवर टाइम, क्योंकि अगर टाइम हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इट्स लाइक वी मे मिस आवर डेडलाइन, वी मे नॉट बी एबल टू अचीव द गोल्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वो बचपन हम कहानी सुनते थे खरगोश और कछुए की, दोनों के पास गोल था अचीव करने के लिए, बट वो लोग टाइम, खरगोश अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, वो सो जाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग सेड कि बीटेक का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, और बहुत कम टाइम होता है इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम समझेंगे और उसके बाद हमारे पास जो जो काम है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर अराउंड अस, उन सारे चीजों को, उन सारे टास्क को वी विल क्लासिफाई इनटू दीस 4 क्वाड्रेंट्स, और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि विच थिंग टू डू एंड विच थिंग विच वी शुड एक्चुअली नेग्लेक्ट, राइट। तो ये जो क्वाड्रेंट 4 बने हुए ना, ये 2 एक्सिस से बने, एक एक्सिस है एक्सिस ऑफ इंपॉर्टेंस की और दूसरी एक्सिस है एक्सिस ऑफ अर्जेंसी, राइट। तो एक्सेस ऑफ अर्जेंसी क्या करती है, 2 चीजों में क्लासिफाई करती है काम को, थिंग्स दैट आर अर्जेंट और वो काम जो अर्जेंट नहीं है, और एक्सेस ऑफ इंपॉर्टेंस जो वाई एक्सिस है वो 2 चीजों में डिवाइड करती है, एक्सेस ऑफ इंपॉर्टेंस, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें नहीं, ठीक है। अब एक एक करके हम क्वाड्रेंट 1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है वो है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सब काम अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे इमीडिएट अटेंशन इन चीजों को चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्राइसिस आ गया, राइट, तो उस काम को आप टाल ही नहीं सकते, वो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत उसी टाइम पे हमारा एक्शन डिमांड करता है, राइट। सेकेंड, फिर जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है वो काम जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे से गेस्ट आ गए, राइट, तो अब वो अर्जेंट है क्योंकि आपको उन गेस्ट को दे हैव विजिटेड यू, तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा, बट उनका आना आपके लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो दीज आर द टास्क दैट आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस बट इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ऐसे काम होते हैं नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग माइंडलेस टीवी शोज, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट को हम एस्केप क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या सर्वाइवल क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। लाइफ में जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है या फिर इमीडिएटली हमारे पास कोई प्रायोरिटीज नहीं होती, ठीक है, वी डोंट हैव एनी गोल्स, तो हम यूजुअली इस क्वाड्रेंट में जाते हैं जहाँ पे वी एक्चुअली ट्राई टू डू फन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग सम शोज लाइक जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसा कोई है 100 पार्टिसिपेंट में से जिसने जीओटी ना देखा हो अब तक? Yes, sir. Okay. Yes, और sir. how many of you have watched GOT or heard about it? GOT के बारे में किसी ने सुना है?
सुना है पर देखा नहीं सर। ओके Yes, sir, I've heard. ओके ओके। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने देख लिया तो अच्छा है, नहीं देखा तो आई गारंटी Watch twice, sir. हाँ एग्जैक्टली। तो इन 4 सालों में गारंटीड से आप एक बार तो इस शो को देखोगे, नहीं तो 2 बार भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वो शो वो काम होते हैं जो हम अर्जेंट भी नहीं होते, नॉट इम्पोर्टेंट भी होते, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि 2 बार देख लिया, ठीक है। और इन चीजों को बहुत सारे एग्जांपल, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला है पीयर प्रेशर, या देयर इज दिस टर्म वी यूज आजकल नाउअडेज, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जब देख रहे हो कि कॉलेज में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब ने जीओटी देख लिया एंड दे आर डिस्कसिंग इट, या कोई और दूसरा शो, ठीक है, तो सब ने देख लिया है और सब डिस्कस कर रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट, और वो फियर आ जाता है, ठीक है, पीयर प्रेशर आ जाता है, तो आप वो देख लेते हैं। तो ये वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे चीज की ना तो जरूरत है ना अर्जेंसी है, फिर भी हम वेस्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में टाइम स्पेंड करना, या फ्रेंड्स आ गए उनके साथ चाय पे चले जाना। हॉस्टल में यूजुअली होता है ना, चाय पे चले जाते हैं, वहाँ चाय पे चर्चा चलती है। तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्यों नहीं? क्योंकि एक दिन में आप अपनी हेल्थ नहीं चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ, जो भी कह सकते हैं। एक दिन में आप बहुत सारी चीजें नहीं चेंज कर सकते हेल्थ की। जैसे कोरोना आ गया था तो पीपल सेइंग स्टार्टेड सेइंग दैट यू नो it is crucial that you have good what do you call immune system and all, and people started working out towards that. but जैसे ही वो जाएगा, people everybody will forget it. late night सोना, ठीक है, unhealthy खाना खाना, it's all. so health is very important, क्योंकि अगर health खराब हो जाएगी तो you won't be able to pay attention to a lot of other things, but we don't consider it urgent. और actually में urgent होता भी नहीं, क्योंकि थोड़ा 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 you have to do every day, right? so ये 4 टास्क हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स है जिसमें आप अपने टास्क को क्लासिफाई करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई योर टास्क इनटू दीज 4 क्वाड्रेंट्स। नाउ बिकॉज यू नो कि वो 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यू एक्चुअली हैव टू यू नो अटेंड योर टास्क अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक इवन मैं भी एक छोटी सी, तो पीपल वर आस्किंग अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो पहली टिप्स एंड ट्रिक है कि एक छोटी सी डायरी मेंटेन करके रखो, ठीक है। एंड एवरी डे व्हेन यू गेट अप ना, राइट डाउन द टास्क यू वांट टू डू इट। आज क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव से लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट सबमिट करना है, तो राइट डाउन दैट, राइट। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ क्विज दैट इज सपोज्ड टू हैपन नेक्स्ट वीक, वो लिख लो। आज के जो जो टास्क हैं, राइट डाउन ऑल द टास्क एंड ट्राई टू क्लासिफाई ऑल दोस, और उसके बाद अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से ट्राई डूइंग दोस tasks. So that is very very important, ठीक है। So this is what this is second trick of managing time. This is called the bucket ball game. So अभी IIT बॉम्बे में जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, हमारे डिपार्टमेंट के हेड जो है वो है प्रोफेसर श्रीधर अय्यर। So he is also कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी एंड हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो उनका ये गेम उनका गेम है, ठीक है। व्हाट ही सेज इट, आज के टाइम पे देखो हम सबको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मल्टीटास्किंग नहीं करता या नहीं कर सकता? कोई ऐसा सोचता हो जो कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता? बोलो। ओके नहीं, हाँ, तो हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं और हम सबके लिए जरूरी भी है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू इन वन सेमेस्टर यू हैव 5 और 6 सब्जेक्ट्स, राइट। तो वो 5 या 6 सब्जेक्ट्स को आपको अटेंड करना है। ऑन द टॉप ऑफ इट शायद कॉलेज में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, या कुछ फैमिली प्रायोरिटीज हैं। तो एट अ टाइम यू मे हैव 5 और 6 बकेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। और आपको धीरे धीरे उन सब बकेट्स पे टाइम देना है। मतलब इट्स लाइक यू हैव टू फिल ऑल दोज बकेट्स, ठीक है। हर चीज की मतलब फैमिली भी एक प्रायोरिटी होती है, स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट होता है, कल्चरल एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट होती है, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। इवन इन एजुकेशन इटसेल्फ यू हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको हर किसी को अटेंशन देना है। नहीं तो इफ यू ignore one subject you may fail in that or you may score less in that. Basically we have a number of buckets in front of us and our job is to fill all those buckets, right? But एक टाइम पे suppose you have to fill all those buckets and you have ball, can you fill all the buckets
साइमल्टेनियसली नो, ऑब्वियसली नो, राइट? तो वहां पे क्या ट्रिक सर बोलते हैं, सर बोलते हैं कि देर विल बी वन ऑफ दोज बकेट्स जो बिल्कुल जैसे बहुत अर्जेंट होगी, ठीक है, अर्जेंट भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सब होंगी बट बहुत अर्जेंट होगी, जैसे हमने भी क्वाड्रेंट में देखा था। तो जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, ट्राई फिलिंग दैट बकेट फर्स्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, टुमारो इफ यू हैव अ क्विज ऑफ से फिजिक्स, राइट? अगर कल फिजिक्स का क्विज है तो आज मे बी आपको स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करने जाना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई और बाकी सब्जेक्ट की करना हो, तो बट इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? फिजिक्स के क्विज के प्रिपरेशन की, तो इसलिए वो बकेट सबसे ज्यादा अर्जेंट हो गया, इसलिए यू हैव टू फिल दैट, राइट? So this is you have to keep that bucket ball game in mind. अगर उसको रखोगे तो थोड़ा सा I think चीजों को prioritize करना is will be easy for you. Now because there was one what you call quadrant जहाँ पे हमने बात करी थी कि ना तो वो urgent होते हैं ना तो वो important होते हैं, फिर भी हम करते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी है, यूजुअली बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी ये यूज करते हैं। यू इफ यू आर यूजिंग सम फोन एंड ऑल ना, ये आप www.menti.com टाइप करो और वहां पे ये वाला कोड एंटर करो। वो कोड एंटर करने के बाद यू विल बी डायरेक्टेड टू सर्टेन पेज जहाँ पे आपको 3 वर्ड लिखने होंगे, ठीक है ना? तो यू हैव टू डिस्क्राइब 3 एक्टिविटीज जो आप टाइम वेस्ट कंसिडर करते हो फिर भी आप करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सोशल मीडिया, or maybe gossiping with your friends, or maybe WhatsApp, use of WhatsApp, something, ठीक है? तो you type and then we will see. The reason why I want to see is इससे एक वर्ड क्लाउड बन जाएगा, और वो वर्ड क्लाउड एक्चुअली हमें हेल्प करेगा रियलाइज कर फिगर आउट करने में कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सब करते हैं एंड स्टिल इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए वो पता करने के लिए प्लीज गो देयर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। Use this code 2024344. Somebody can type this in the chat also. I'll see you. हाँ, so जैसे जैसे आप करोगे लिखते जाओगे this word cloud will become large and large, but इसमें से कुछ वर्ड, physics is waste of time. ये किसने लिखा है फिजिक्स? और इसमें जो वर्ड सबसे बड़ा है उसका मतलब है मैक्सिमम पीपल हैव रिटन दैट वर्ड। सो यू पीपल आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? Yes, sir. ओके, तो अभी हम देखते Yes, हैं sir. कि क्या क्या चीजों में हम टाइम वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा। आई थिंक सबसे ज्यादा जो बड़ा वर्ड निकल के आ रहा है सोशल मीडिया और यूट्यूब ही आ रहा है। नाउ व्हाट्सएप आल्सो, so this will actually help me to see how many participants have actually responded. So out of 98, 14 have responded. Instagram is also emerging. Social media, YouTube, Instagram, WhatsApp. So you people also consider sleeping as a waste of time. 6-7 hours is okay. That is mandatory also.
one more minute we wait and then we move because 37 people have already responded. So let's see, 40-50 तक number जाता है, then we go back. This is just to get an idea कि mostly लोग किस चीज पे time waste करते हैं. Okay, so we see that social media is the biggest enemy, right? And then YouTube also. So YouTube actually other people have also written, but I think there might be difference in the words they have used. This was just say YouTube and Instagram also. So you all that comes into social media only, right? And second things is about games also. So people have used different words for games, like watching game or playing video game and all that. So that also comes under the games, right? So now we know. So should we go back? Okay. So let's come back. I think that is it. So सबसे पहले I think या सबसे ज़्यादा जो biggest enemy हमारा है वो है social media. Be it Instagram, be it WhatsApp, be it even YouTube I consider as social media because nowadays below every video you see a lot of comments and then debates going on and all that stuff. So let's consider that also as social media. So what is happening here is what is good about these things is we have certain common enemies, right? So if you have a group of friends, come together, sit together, decide one day that at least for this 1 week we won't be using social media. Say Facebook is week use nahi karna hai. If you take a measure together, decide together, I think that will help because at WhatsApp, Facebook, ये सब चीजें ऐसी हैं, you use it only because your friends use it, right? I talked about this FOMO thing and peer pressure and all that. So at least WhatsApp, so you need someone to chat or groups. You create groups and then somebody says something, others say something, share, करते हैं and all that. So if you come together and decide, I think you can save on time, right? Or so this is the thing. First thing you need to realize what are the activities that you are doing to waste your time, and then secondly you have to consider how to eliminate those activities from your life, right? Or there are people I know who might be addicted to these things. So addiction की वजह से एक habits बन जाती है. So there is one very good book on habit. I don't remember who the author is. If you find time, just try reading that. That will actually help you to control a lot of your urges. It could be for social media, it could be for something else, but that's a very good book, right? So now that's the end of time management. So we know that time management is one of the most time is one of the most precious and limited asset. Limited because we all have got 24 hours and we have to manage that 24 hours to do different things. And second important thing is school life and college life are actually very different because in school life a lot of things you do are actually you are made to do that either by your parents or your teachers, but in college the kind of freedom you get is much more higher, right? And because the freedom is high, so there is high probability that you may use or misuse it. So everything actually depends upon you. So a lot of responsibilities onto your own shoulders rather than your teachers or parents or your siblings deciding things.
So that is, you have to understand that whatever things you do for in these 4 years will actually influence your rest of your life, that lifelong learning wala aspect. So in these 4 years, if you develop the habit of reading not only engineering textbooks but the other good books that are available, that habit will be formed, right? And the most important thing about time management is small targets or goals, right? You all guys know about Elon Musk, right? Very famous nowadays. So even if his single tweet can, make bitcoins expensive or things like that. So you can, in terms of money, he's, I think, went up to number 2 or number 1 sometime. And in terms of influence also, a single tweet actually makes uh, a large difference in the stock market itself. And third thing is, ideas wise also, he is very different. He has got ideas that are really, very, very unique and different. So what this person does is he tries to, split his time into 5 minutes का interval. And how does that help? I'll tell you. Suppose मुझे कोई काम करना है आज के दिन में, मैं मॉर्निंग में उठा, मुझे क्विज के लिए प्रिपेयर करना है, एक चैप्टर पढ़ना है मुझे, तो मैंने मन बना लिया कि आज मैं पढ़ूंगा, बट वो मैं आज पढ़ूंगा इस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस आज में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सुबह उठूंगा तो मैं नाश्ता करूंगा तो शायद फेसबुक या टीवी पे कुछ आ रहा होगा, तो मैं कहूँगा एक ही तो चैप्टर अभी ये देख लेते हैं, बाद में करेंगे वो एक चैप्टर। फिर ऐसे करके टाइम वेस्ट करके थोड़ी देर में दोस्त का फोन आ जाएगा, वो कहेगा कि चलो ये करने चलते हैं, तो दोस्त ने बाद में करेंगे। देन लंच कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि लंच करने के बाद एक शॉर्ट नैप ले लेते हैं, तो ऐसे करके टाइम हमारा चला जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप बहुत छोटे छोटे टारगेट रखोगे ना, व्हाट मस्ट डज इज, वो हर अपने 5 मिनट के टाइम का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, इवन सम एमएनसीज, दे डू इज लाइक हाफ एन आवर, हर इसका टाइम का मैनेज करके रखते हैं। तो डोंट सेट योर गोल्स फॉर द एंटायर डे, ट्राई टू सेट गोल्स की अभी 8 o'clock हो रहे, 9 to 10 आई हैव टू फिनिश दिस ऑन दिस टास्क। जितने अर्जेंट गोल्स रखोगे और जितने शॉर्ट टर्म गोल रखोगे, there will be more easier to achieve, right? Next thing about, so I said that effective study करने के लिए कुछ tips and tricks you told that I should share. So I'm sharing these 2 tips. First is about note taking and second is about study method, right? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने से पहले सबके पास नोट्स होने चाहिए। अब इंडिया में एक बहुत गलत ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आई थिंक कुछ गाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जो दैट आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स एग्जाम्स, और वो हम पूरा सेमेस्टर पास करने के बाद एग्जाम से पहले वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं या फिर वही बुक्स, ऐसी शॉर्टकट वाली बुक जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो पढ़ के वी गिव दैट एग्जाम। वो बहुत गलत ट्रेंड है। तो व्हाट वी शुड डू इज, सबसे पहले एक नोट टेकिंग वाली हैबिट डेवलप कर लो कि वॉट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास, उसके छोटे नोट्स यू नीड टू प्रिपेयर, और वो नोट्स पर्सनलाइज नोट्स होने चाहिए। पर्सनलाइज इन द सेंस आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली द नोट्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे लेवल पे चली जाती है, राइट? और वो नोट्स ऑर्गेनाइज्ड भी होने चाहिए। ठीक है, नोट्स ऑर्गेनाइज के लिए मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट मैप। ये यू कैन डायरेक्टली गूगल इट। सो दिस इज वेरी हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च। इन फैक्ट देयर इज एन इंस्टीट्यूट नियर बाय माय इंस्टीट्यूट, HBCSC, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। देयर पीपल आर डूइंग PhD ऑन टॉपिक्स। सो इस पे बहुत सारे रिसर्च एस्टैब्लिश हुए। वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप कॉन्सेप्ट मैप बनाते हो ना, कॉन्सेप्ट मैप इस तरह के फिगर्स होते हैं, सो दे आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, सपोज क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा, तो वो हर कॉन्सेप्ट को आप एक बॉक्स अलॉट करते हो, एंड देन देयर आर डायरेक्टेड एरोज। वो डायरेक्टेड एरोज में आप ये लिखते हो कि हाउ दिस थिंग इज रिलेटेड टू अदर थिंग। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, इफ यू कैन क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप फॉर दैट, इट विल बी रियली हेल्पफुल। और रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च इस पे हो चुकी है जो ये बताती है कि दिस प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सो दिस इज वन थिंग। सो नोट्स लेने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट even in that notes try to include this concept map that will actually summarize you, summarize whatever you have studied. This is one thing. Now note taking mein there are basically 5 things.
पहला है रिकॉर्ड, राइट? नोट्स लेने से पहले यू नीड टू नो कि कितने सारी चीजें, मतलब व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो जितने इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सब आप अपने नोट्स में रिकॉर्ड करके रखिए, ठीक है? सेकेंड थिंग इज रिड्यूस. देर इज दिस वेरी फेमस शो कॉल्ड यंग शेल्डन, वो बिग बैंग थ्योरी का प्रीवियस वर्जन है, मतलब नया है बट इट्स एक्चुअली, तो उसमें देर इज अ वेरी स्मॉल बॉय नेम शेल्डन. वो कहता है इफ यू हाईलाइट एवरीथिंग यू डोंट हाईलाइट एनीथिंग, राइट? अगर आपने सब कुछ लिख लिया है नोट्स में तो दैट दे आर नॉट नोट्स, दे आर टेक्स्ट बुक एक्चुअली. So your notes should be actually very reduced in size. They should be summaries, not everything and सब कुछ नहीं होना चाहिए notes में, right? Third thing is recite. Notes आप इस तरीके से बनाओ कि when you look at those notes ना you should actually be able to elaborate on each and every point, ठीक है? तो that is what recite means. Then is reflect. उन नोट्स को कनेक्ट करके यू शुड आल्सो बी एबल टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज. वो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट थिंग इज रिव्यू. एक बार नोट्स बना लिए, डोंट डंप दैट इनटू योर एल्मिरा और समथिंग. कीप रिवाइजिंग इट एवरी डे, वीक और मंथ, ठीक है? इससे क्या होगा, इफ यू आर इन टच तो वो आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल लिंक्स करेक्ट हो जाएंगे. ये मतलब न्यूरोलॉजी, देयर इज अनदर सब्जेक्ट इन आवर डिपार्टमेंट, एजुकेशनल न्यूरोलॉजी. वहाँ मतलब दीस थिंग्स आर टॉट कि ब्रेन में जो कनेक्शंस होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं जब हम चीजों को रिवाइज करते जाते हैं. इफ यू डोंट रिवाइज दोस कनेक्शंस बिकम वीक एंड हेंस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल ऑल दोस थिंग्स ड्यूरिंग एग्जाम. तो इसलिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट टेकिंग ये 5 प्रिंसिपल्स इफ यू रिमेंबर दैट विल बी हेल्पफुल. और सो द नेक्स्ट पार्ट इज स्टडी मेथड. तो ये एक्चुअली हर कोई सोचता है कि सम स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर बेटर देन अदर्स, व्हाई इज इट सो? और क्या स्टडी करने का कोई इफेक्टिव तरीका है? जैसे बिगिनिंग में यू पीपल आस्क मी सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंप्रूव स्टडी मेथड, ठीक है? एक्चुअली इस टॉपिक पे भी देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कि व्हाई, व्हाट मेक्स टू स्टूडेंट्स डिफरेंट इवन इफ दे might be spending equal amount of time, even if they have same amount of IQ and all. So there are certain ways in which you can actually make your study very effective. So this is first thing. First is this thing we call as survey. आप कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग इट एक बार टर्न ऑल द पेजेस ऑफ द चैप्टर एंड सी की व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट, ठीक है? मेजर हेडिंग्स क्या हैं, ऑल दैट. सो एक लॉजिकल फ्लो विल बी क्रिएटेड कि ठीक है इस चैप्टर में पहले ये चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं, देन द वर्किंग प्रिंसिपल इज गिवन एंड देन दे हैव मेड सम कंक्लूजन और सम रिमार्क्स. तो वो एक फ्लो अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो थ्रू, राइट? सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज आप अभी सब लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, मैथ्स 101 आई थिंक, एनटीएच 101 और समथिंग. दैट इज द फर्स्ट कोर्स इन हायर मैथमेटिक्स, ठीक है? दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स यू विल बी डीलिंग इन योर स्कूल. तो at each step you need to question yourself. अगर कोई थ्योरम है उसमें ये लिखा है कि given these conditions this will be the result, so try to question or challenge yourself, what if I drop this condition, what will happen, ठीक है? या हर चीज में ऐसा क्यों होता है, that क्यों और curiosity वाला component is very important, right? That if you know the right question then only you will be prompted to find the answers to those questions. So it is very important to find questions or question yourself. खुद से क्वेश्चन पूछना इज इंपॉर्टेंट. इन केस यू आर नॉट एबल टू आंसर इट देन यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स और टीचर्स. बट अगर क्वेश्चन ही नहीं करोगे यू विल एक्चुअली मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो चैप्टर के अंदर बहुत सारी जो डिटेल्स हैं उनको आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे. देन नेक्स्ट थिंग इज रीड. एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमें बहुत जल्दी होती है चीजों को खत्म करने की, फिनिश करने की. नेवर डू दैट. टेक टाइम विद एवरीथिंग, ठीक है? ऐसा जल्दीबाजी में ज्यादा चीजें खत्म करनी कम टाइम में, तो वो जो स्टडी होती है दैट इज नॉट इफेक्टिव. ट्राई टू स्पेंड टाइम एंड स्टार्टिंग में इट विल टेक थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे ना आगे आपको कम टाइम लगेगा. तो डोंट बी इन हरी वाइल रीडिंग, राइट? और रीडिंग के टाइम पे भी दिस प्रैक्टिस ऑफ हाईलाइटिंग और ये सब करना, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज रिसाइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई थिंक फिजिक्स में एक दिस इज वेरी वेरी फेमस पर्सन, व्हाट इज हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम. डू यू रिमेंबर
very famous person in physics who is known for his teaching. Feynman, sir. I think Feynman. Richard Feynman. So what Richard Feynman says कि आप कोई भी Richard concept, Feynman. yeah, right, Richard Feynman. So Richard Feynman says कि आप कोई भी concept पढ़ रहे हैं ना, you won't be able to मतलब जब तक आप successfully you don't deliver it to others अपने words में अपने तरीके से, तब तक आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है? तो you should be able to put every concept in the simplest way, और वो तभी आप कर पाओगे जब you have a very better understanding of it. So at the end of the day, try to rephrase or recite things in your own ways, right? Last वही same point है कि you have to continuously review things, otherwise you tend to forget all those things. So that's all.